Hello students. So students, in the previous part we have started chapter number 6 of class 11th mathematics, that is linear inequalities. Okay student, in that part I told you about what is linear inequality, how can we recognize a particular expression is a given inequalities, and so on. Okay, and we have also studied some types of bracket like open interval, closed interval, and a combination of closed and open interval. Okay, so today student, I am going to tell you the solution of a linear inequality in one variable. Okay, so the heading for today will be algebraic solution of algebraic solution of linear inequality in one variable and their graphical representation. Okay, graphical representation. Okay student, so in today's video student, I am going to tell you the solution of a particular linear inequality in one variable. Okay, I told you in the previous part that linear inequality can be in one variable also, can be in two variable also. Linear inequality can be linear also, it can be inequalities can be quadratic also, cubic also, and so on. But in our syllabus we will study only linear inequality in one variable as well as two variable. Okay, so the first heading is that algebraic solution of linear inequality in one variable and their graphical representation. Okay, graphical representation, how we will represent the solution of a linear equalities graphically. Okay, so this we will study in this part of the video. So what are the steps? Okay, means student, first you should know what is the solution of linear inequality. The solution of linear equality is nothing but the value of the variable which satisfy the statement. For example, suppose I have written something like this: x is less than 4, where x belongs to natural number. Okay, and you have to find the value of x. What can be the values of x? Okay, it is an inequality, student, it is an inequality. Okay, and you have to find the solution of this inequality where x is a natural number. We all know that natural number starts from 1. Okay, so 1 2 3, and that x is less than 4. So what will be the values of x can be possible? So in this case student, the values of x can be written as 1, 2, 3. So if you have to write the solution set of this inequality, so we all know that set is written in the curly braces, and whatever value will come we will write inside the curly braces. So the solution set of x will be 1, 2, 3. Okay, because the value of x is satisfying the above inequality. So by this way student, you are going to solve the linear inequation in one variable as well as two variable. So first we are going to start solution of linear inequality in one variable. Okay, so before going to find the solution of linear inequality, we should understand some term. Okay, student, you all have seen the number line. Okay, you all have seen the number line. Suppose I am drawing a number line like this. I am drawing a number line like this. Here in the middle 0 will be there, in this side positive number will be there, and in this side negative number will be there. Okay, if I will move in the positive direction of 0 means in the right side of 0 we will get a positive number,
and when we will move the negative side, left side of the 0, we will get a negative numbers. Okay, so whenever you will see the real numbers, so we all know that real numbers lies from minus infinite to infinite. So how we know that it lying from minus infinite to infinite? Because when you will move in the positive direction, so you are moving, okay, so in the positive direction what will come at the last point? Infinite. And in the negative direction the last point will be minus infinite. In the negative direction it will be minus infinite, and in the positive direction it will be plus infinite, because it can move up to any values. जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करोगे तो मूव करते जाओगे, जीरो के आप राइट साइड मूव करोगे तो 1 2 3 4,000 10,000 lakh करोड़ एंड सो ऑन विल कम. सो व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू of the right side of the zero? That will be infinite, and on the left side of the zero that will be minus infinite. तो जो रियल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती है वो कहां से कहां लाई करती है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक. ठीक है, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं. अब चूंकि इसको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लोग किसी ब्रेसेस में लिखते हैं. या तो आप ओपन इंटरवल यूज करो या तो आप क्लोज इंटरवल यूज करो. तो मैंने आपको बताया था ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो नहीं लेते हैं, उनके बीच की सारी रियल वैल्यूज लेते हैं. ठीक है, तो जब भी आपको इनफाइनाइट दिखता है, व्हेनेवर यू विल सी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है. ओके, व्हेनेवर यू विल राइट द सॉल्यूशन ऑफ एनी इनइक्वालिटी, सो फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट along with infinite or minus infinite always open interval comes. So that's why the real number को जो सेट होता है स्टूडेंट, उसको कैसे लिखते हैं? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इन द ओपन इंटरवल. ठीक है, कोई भी रियल नंबर अगर आर दिया होगा तो उसका मतलब क्या है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट. ठीक है, इन द ओपन इंटरवल. ठीक है, इन द ओपन इंटरवल. अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया होता है तो हम मानते हैं रियल वैल्यूज के लिए हमेशा. अगर मान लो ऐसे इनइक्वालिटी दिया हुआ है x इज लेस देन 5, सो ऐसे क्वेश्चन में मान लो सॉल्व इनइक्वालिटी x इज लेस देन 5. अगर कुछ नहीं दिया है यहाँ पर तो इस केस में क्या मानते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे जो x है वो क्या मानते हैं? हम लोग अज्यूम करते हैं रियल नंबर. ठीक है, जब कुछ भी मेंशन ना हो तो रियल नंबर मानते हैं, और अगर कुछ मेंशन किया हो तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो अगर नथिंग इज मेंशन्ड देन यू विल अज्यूम दैट वी आर सॉल्विंग फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x. ओके, ये मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको. ठीक है, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी. तो यू शुड कीप इन योर माइंड दैट यू ऑल नो द नंबर लाइन. इन द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन 0 comes. In the right side of the 0 positive number comes. In the left side of the 0 negative number comes. In the extreme left minus infinite will come, and in the extreme right plus infinite will come. And with the infinite or plus minus infinite we will always use open interval, क्योंकि हम लोग infinite को कभी भी काउंट नहीं करते हैं. तो जब काउंट नहीं करेंगे तो वो वैल्यू एक्सक्लूड होगा, और जब वो वैल्यू एक्सक्लूड होगा तो वहां पे कौन सा इंटरवल रहेगा? ओपन इंटरवल. ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल? हाउ वी विल सॉल्व इट? लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल. ठीक है, so there are some rules to solve the particular linear inequality in one variable. ठीक है, पहले आप क्या करो कि first you should know that how to solve a linear equation. आप linear equation को कैसे solve करते थे स्टूडेंट? Suppose x plus 5 equal to 7. This is a linear equation. This is a linear equation in one variable. I just want to remind the few concept in the earlier classes. Suppose ये linear equation in one variable है और इसमें आपको x के लिए सॉल्व करना है. ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन में एक रूल पढ़ा था कि इन इक्वेशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर टू द बोथ साइड. अगर हम लोग एक इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर ऐड करें तो उस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. दिस यू ऑल नो दैट. ठीक है, इन इक्वेशन में क्या होता है, अगर हम लोग सेम नंबर को या तो किसी साइड ऐड कर दे, दोनों साइड ऐड कर दे, या दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दे, तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, इफ आई वांट टू सब्ट्रैक्ट -5 इन बोथ साइड, सो -5 x + 5 -5 and 7 - 5 on the right side.
तो अगेन ये वाला जो इक्वेशन है वो इसके इक्विवेलेंट ही है, इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी हम लोग इक्वेशन में यूज करते थे वही प्रॉपर्टी हम लोग क्या यूज करेंगे, इनइक्वालिटीज में भी यूज करेंगे, ठीक है। हम लोगों को पता है कि इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग दोनों इक्वालिटी के दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम नंबर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस होता है इक्वालिटी और इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है। ये तो आप कर दिया। अब ध्यान देना, पहला वाला रूल तो सेम होता है कि हम लोग सेम नंबर ऐड कर दिए, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन बाय चांस आप जब मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, ठीक है, तो अगर आपने स्टूडेंट दो रूल होता है, देयर आर टू रूल्स, mainly two rules to solve the linear inequalities in one variable. First, that is equal numbers may be added or subtracted from both side of the inequation. मतलब कि दोनों साइड या तो आप इक्वल नंबर ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट, सपोज आपके पास कोई इनइक्वेशन है लाइक दिस, x is greater than 5, ठीक है, x is greater than 5, और I can take one more example that 6 is greater than 5, ठीक है। अगर आपने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिपीट वन मोर टाइम। देखो इक्वेशन में क्या होता था कि जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो इक्वेशन के साइन पे, मतलब कि अगर ऐसे लिखा हुआ हो कि x इक्वल टू 4, तो अगर नेगेटिव, मान लो मैंने -1 का मल्टीप्लाई दोनों साइड किया तो -x इक्वल टू -4 होता था, सेम ही रहता था। लेकिन इन इक्वेशन में यही चीज चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी बोल लो या इनइक्वेशन बोल लो, ठीक है। या तो आप इनइक्वालिटी बोल लो, इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन बोथ आर सेम स्टूडेंट, ठीक है। द मीनिंग ऑफ बोथ द टर्म इज सेम। सो पहला वाला रूल तो सेम है कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई डिफरेंस नहीं आता है या उस इनइक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर, कोई नेगेटिव नंबर है जो कि नॉन जीरो है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय द इनइक्वालिटी बाय अ नॉन नेगेटिव नंबर, सॉरी नॉन जीरो नंबर विच इज नेगेटिव, अगर आप इनइक्वालिटी को किसी नॉन जीरो मतलब कि जो जीरो ना हो और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब कि अगर किसी इनइक्वालिटी को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, साइन बदल जाता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे कि मान लो मैंने इसकी दोनों साइड क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, so it will become -6 and it will become -5। तो जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। अगर ग्रेटर था तो क्या बन जाएगा, लेस। समझ में आ रहा है? I think it is clear to you. Whenever we divide an inequality, whenever we divide or multiply an inequality by a negative non-zero number, then the sign of inequality reversed. Okay. For one more example, if I have written like this, x is greater than 4. So if I will multiply this expression by -1, so it will become -x, it will become -4. So in that case, sign of inequality will also change. It will be like this only. तो इससे ये पता चला स्टूडेंट कि जब डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x is greater than -6, फॉर एग्जांपल 2x is greater than -6, और मुझे क्या करना है, दोनों साइड -2 से डिवाइड करना है। सपोज आई एम डिवाइडिंग दिस एक्सप्रेशन बाय -2, तो अगर मैं इसको दोनों साइड -2 से डिवाइड करूंगा तो here it will become -x, here it will become -x and here it will become +3, क्योंकि मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो अगेन चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सो इन दैट केस -x विल बी लेस देन 3। ओके, so this can also be written like this, ठीक है। so
देखो पहला रूल तो सेम होता है, दो ही रूल है सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी है। पहला रूल कि इनइक्वालिटी में हम दोनों साइड इक्वल नंबर को या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जब इनइक्वालिटी में या तो हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो उस केस में साइन एंड इक्वालिटी चेंज हो जाता है। द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी हैज बीन चेंज्ड। तो यही दो रूल है जिसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन सो दैट यू कैन गेट द आइडिया ऑफ हाउ टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ओके, सो सी, सपोज I am solving the example number 1 of your book, that is solve x is solve 30x less than 200, okay, when first case x is a natural number, x is a natural number, and the second case x is an integer, ठीक है, x in an integer. Now we have to solve this inequality. ठीक है, मैंने बताया सॉल्व का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यू x की फाइंड करना जो इस इनइक्वेशन को या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, The solution of an inequality is the value of the variable which satisfy the statement. तो इसको मुझे सॉल्व करना है पहले केस में, तो मैं सॉल्व कर दूंगा स्टूडेंट। सॉल्यूशन इसका देखिए आप, व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज गिवन दैट 30x इज ग्रेटर लेस देन 200। ठीक है, देखो जब इनइक्वेशन में आप पॉजिटिव नंबर से कुछ करते हो, पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब साइन चेंज होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर मैं दोनों साइड 30 से डिवाइड कर दूं तो 30 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन में चेंज आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड 30 से डिवाइड कर दे रहा हूं। ओके, फॉर सॉल्विंग फॉर x। तो अगर मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो लिखूंगा, अगर मैं लिखूं ऐसे 30x डिवाइड बाय 30 लेस देन 200 डिवाइड बाय 30, so this will become x and this will become 200 by 30. ठीक है, now 0 will cancel, so x is less than 20 by 3. ठीक है, x is less than 20 by 3. पॉजिटिव नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो। किसी पॉजिटिव नंबर से अगर आप किसी इनइक्वालिटी में या तो ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल फर्क पड़ता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। अब देखो यहाँ से x इज लेस देन 20 by 3। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो क्या है, 20 by 3। अगर आप 20 को 3 से डिवाइड करो स्टूडेंट, 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 18, 2.0, फिर 6.667 like this will come. Okay, this type of 6.666 dot will come. ठीक है, because it is non-terminating. Okay, so x is less than 6.6666 and so on. Now first case, what is first case? First case भी solve करना है कि x is natural number. ठीक है, x is natural number. So देखो हमको क्या करना है, हमें x की वैल्यू 6.6 से कम लेनी है। ठीक है, और x होना क्या चाहिए, x होना चाहिए नेचुरल नंबर, और आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। So what will be the possible value of x? The possible value of x will be, student, the possible value of x will be 1, 2, 3, 4, 5. 5 तक ही लेंगे and 6 भी लेंगे because 6 is less than 6.6. Okay, because 6 is less than 6.666. So there are 6 values of x. So this will be the solution of this inequality in first case. क्योंकि
फर्स्ट केस में x नेचुरल नंबर था, तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6। तो इसी को क्या बोलते हैं सोल्यूशन सेट। और जब सोल्यूशन सेट लिखा जाता है, सेट, जब भी आप सोल्यूशन सेट लिखोगे तो सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। तो आप लिखोगे कैसे, द सोल्यूशन सेट ऑफ, ऐसे लिखोगे, और द सोल्यूशन सेट of x will be in curly braces 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this will be the answer of first part of this question. ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था, इसको डिस्क्रीट, इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस। और इसमें जो वैल्यूज लिखी होती है केवल वही वैल्यूज को लेना होता है, मतलब कि जो वैल्यू सेट के अंदर लिखी हुई है बस वही वैल्यू लेते हैं, उनके बीच की वैल्यू नहीं लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 लिया हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि केवल यही 6 वैल्यू होगी x की, और कोई वैल्यूज नहीं होगी। ठीक है, तो ब्रेसेस का यही डिफरेंस होता है, यही मतलब होता है। तो पहले का तो सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब सेकंड केस का सोल्यूशन देखते हैं। इन द सेकंड केस, x इज एन इंटीजर स्टूडेंट, x इज एन इंटीजर। इस केस में x क्या है, इंटीजर। एंड यू ऑल नो दैट इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव आल्सो, नेगेटिव आल्सो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है x की, द सोल्यूशन ऑफ x विल बी व्हाट, द सोल्यूशन ऑफ x विल बी व्हाट, क्या क्या हो सकता है, देखो 6.6 से कम, 6.666 से जो इंटीजर कम होंगे वो वैल्यूज। तो एक बात बताओ मुझे, मान लो अगर ये नंबर लाइन है, ठीक है, और ये 0 है और ये 6 है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं 6.66 आएगा, तो हमें जो x की वैल्यू लेनी है वो 6.666 से कम होनी चाहिए और वो इंटीजर होनी चाहिए। मतलब कि हमको ये वाली वैल्यू लेनी है, इधर वाली वैल्यूज 6.6 के इधर वाली वैल्यूज लेनी है हम लोगों को, इस साइड की वैल्यूज लेनी है। ठीक है, और ऐसी वैल्यूज लेनी है जो इंटीजर हो। तो देखो इधर तो माइनस इनफाइनाइट तक जाता है ना, माइनस इनफाइनाइट तक जाता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो डॉट डॉट डॉट, मतलब कि इधर मूव करेगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 and 6. So this will be the solution of the x for the second case। क्योंकि देखो हमको इंटीजर लेना है, और इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो हमें 6.6 से कम का इंटीजर लेना है, तो उससे कम का इंटीजर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, -3 and so on up to minus infinite. So the solution of this part will be दिस वन। और अगर इसको आपको सेट के टर्म्स में लिखना है, सेट के टर्म्स में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और सोल्यूशन सेट, मैं ऊपर लिख रहा हूं स्टूडेंट, द सोल्यूशन सेट ऑफ x। अगर सेट के टर्म्स में लिख रहे हो तो ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, डॉट 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 का मतलब इधर मूव कर रहा है, देन -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 and 6. So this will be the solution set of the second part of this question। ठीक है, तो आपकी मर्जी है स्टूडेंट, पहले आपने फर्स्ट पार्ट पहले आपने सॉल्व कर लिया उसको, उसके बाद देखा कि क्या कह रहा है। पहले केस में x नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या अगर इसी को सेट के टर्म्स में लिखना है तो सोल्यूशन ऑफ x will be in the curly braces 1, 2, 3, 4, 5, 6. सेकेंड केस x was an integer, तो x इंटीजर था, तो 6.6 से कम का इंटीजर कौन कौन सा हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो एंड सो ऑन लेफ्ट साइड में, तो ये डॉट 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 लगा दिया, उसके बाद -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो इस तरह आपको सॉल्व करना है। वन मोर एग्जाम्पल आई कैन सॉल्व फॉर यू। ठीक है, it is very easy and it is very important. If you will able to understand the concept, then you can solve all the question whatever is given in the exercises. Okay, now one more thing, one more example. Suppose solve 5x minus 3 less than 3x plus 1। अब ध्यान दो, बस इतना दिया हुआ है। ठीक है,
इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे x के बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि x इज अ नेचुरल नंबर, इज अ इंटीजर और व्हाट, ठीक है। तो जब कुछ ना मेंशन हो तो मैंने क्या बोला था कि क्या मानते हैं x को, वी एज्यूम दैट कि x क्या है यहाँ पर एक रियल नंबर, ओके। सो इसको सॉल्व करना है आपको। तो स्टूडेंट वी हैव टू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x ना। तो अब मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी का रूल था पहला वाला कि अगर कोई नंबर है तो हम लोग दोनों साइड सेम नंबर को या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एंड दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दो मेथड है इसके, या तो आप इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करो और बस बीच में इनइक्वालिटी का साइन कर दे दो, या जो मैं बता रहा हूं वो करो। देखो हमें x के लिए सॉल्व करना है तो आप एक काम करो, दोनों साइड में से पहले एक साइड के x को हटा दो, मतलब कि एलिमिनेट करो। तो एलिमिनेट कैसे करोगे, मान लो मैंने क्या किया कि I have subtracted 3x from both side, 3x, क्योंकि मुझे x के लिए सॉल्व करना है और मैं चाहता हूं कि x केवल एक ही साइड रहे। यहाँ पे दोनों साइड है ना, तो मैं चाहता हूं कि x केवल एक ही साइड रहे। तो क्या हम लोग दोनों साइड -3x कर सकते हैं, क्योंकि अगर इधर -3x करेंगे तो ये वाला x गायब हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड -3x को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, मैंने बताया था साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन से। सो सब्ट्रैक्टेड, यहां लिख देंगे सब्ट्रैक्टेड 3x, सब्ट्रैक्टेड 3x फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड्स। नाउ अब देखो 5x minus 3x it will become 2x minus 3 and this 3x will be cancelled, तो यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। अब क्या करो कि मुझे ऐसा चाहिए, देखो सॉल्व करने का मतलब ये होता है ना कि आपको बस एक साइड वेरिएबल रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए, वेरिएबल के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। तो अब देखो मैं चाहता हूं कि इधर केवल x ही रहे, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब दोनों साइड में +3 करूंगा, तो इधर भी +3 किया और इधर भी +3 किया, ठीक है। तो ये -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, तो here it will left 2x and here it will left 4, ठीक है, here it will left 4। करना क्या होता है कि पहले अगर x दोनों साइड है, मान लो वेरिएबल दोनों साइड है, तो आप एक साइड के वेरिएबल को हटा दो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तो मैंने दोनों साइड पहले सब्ट्रैक्ट किया -3x, तो मेरा आ गया 2x - 3 इज लेस देन 1। अब मैं चाहता हूं, क्योंकि हम लोग x के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, तो एक साइड आप चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड आप वेरिएबल को ही रहने दो, बस वेरिएबल रहना चाहिए, उसके साथ कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस -3 को एलिमिनेट करने के लिए +3 दोनों साइड ऐड कर दिया। तो जब +3 इधर ऐड किया और जब +3 इधर ऐड किया तो यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो गया, बिकॉज इट इज -3 एंड इट इज +3, सो दीज टू इज कैंसिल्ड एंड हियर इज 1 + 3, सो वी कैन राइट 2x इज लेस देन 4। अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, वी वांट टू फाइंड फॉर x। तो अब क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड यहां पे लिख दिया एडेड 3 इन बोथ साइड, एडेड 3 इन बोथ साइड्स, ठीक है, एडेड 3 इन बोथ साइड जब किया तो ये चीज आया, ठीक है। उसके बाद अब ये मुझे मिला, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे x चाहिए केवल, तो बोथ साइड आई कैन डिवाइड बाई 2। मैं दोनों साइड किससे डिवाइड कर दूं, 2 से, क्योंकि मुझे बस x चाहिए। मान लो यहाँ 3 होता तो 3 से डिवाइड करता, 5 होता तो 5 से डिवाइड करता, तो मुझे बस x चाहिए, तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2x/2 एंड 4/2, बिकॉज 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, इसीलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आया है, ठीक है। यहां लिख दिया डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो तो इधर क्या बच गया x और इधर बच गया 2, ठीक है। सब सॉल्व करने पर x लेस देन 2 आया, सब सॉल्व करने पर x लेस देन 2 आया, ठीक है। देखो अगर पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, अगर पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो या पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर रहे हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कभी चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना ये बात, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहता है साइन, लेकिन जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन अपोजिट हो जाता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो x इज लेस देन 2 आया। अब देखो x के बारे में कुछ मेंशन नहीं था स्टूडेंट, x के बारे में कुछ मेंशन नहीं था, तो क्या वैल्यू होगी x की, x की क्या वैल्यू होगी। तो हम जब कुछ नहीं मेंशन होता है तो मान लेते हैं कि x इज अ रियल नंबर, ठीक है, x इज अ रियल नंबर एंड वी ऑल नो दैट
रियल नंबर लाइज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो आप नंबर लाइन यूज करो इसको, नंबर लाइन, ठीक है, ये नंबर लाइन है मान लो, और यहाँ कहीं जीरो होगा, यहाँ कहीं जीरो होगा मान लो, यहाँ कहीं 2 होगा, ठीक है, इधर माइनस इनफाइनाइट होगा, इधर प्लस इनफाइनाइट होगा, इस साइड, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। हमें लेना क्या है स्टूडेंट, वी वांट टू टेक x इज लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, 2 से कम होनी चाहिए, 2 से कम सारी वैल्यूज चलेगी, सारी वैल्यूज। तो 2 पे आप क्या कर दोगे, देखो इसी के साथ मैं बता दे रहा हूं आपको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको। 2 से छोटा है ना, x इज लेस देन 2, तो 2 पे आप ओपन सर्कल बनाओगे, ओपन, ओपन सर्कल, ठीक है। ओपन सर्कल का मतलब ये होता है किसी नंबर पे अगर ओपन सर्कल लगा हुआ हो तो उसका ये मतलब होता है कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है। और अगर डार्क सर्कल बनाओ मतलब कि ऐसे बनाओ, ऐसे, ऐसा बनाओ डार्क, तो मतलब कि वो वैल्यू इंक्लूडेड है। यहाँ पे 2 तो इंक्लूडेड नहीं है ना, 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, 2 से कम जितनी भी वैल्यूज है सारी वैल्यूज चाहिए। तो हमको इधर इस साइड की सारी वैल्यूज लेनी है, हमको इस साइड की सारी वैल्यूज लेनी है, मतलब कि अगर मैं कंसीडर करूं तो मुझे इधर का सारा वैल्यूज चाहिए, ठीक है, इधर का सारा वैल्यूज चाहिए एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 पे मैंने क्या बनाया है, ओपन सर्कल, इट इज नोन एज ओपन सर्कल। और ओपन सर्कल का मतलब ये हुआ कि दिस वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी स्टूडेंट, x की वैल्यू जो होगी वो माइनस इनफाइनाइट से कहां तक होगी, 2, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक होगी, 2। और दोनों पे इंटरवल कौन सा रहेगा, दोनों पे इंटरवल कौन सा रहेगा, तो इंटरवल इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, और चूंकि 2 को हमको लेना नहीं है, वी डोंट वांट टू टेक 2 एज अ सॉल्यूशन बिकॉज x इज लेस देन 2। यहां पे मेंशन है ना कि x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 मतलब कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, 2 से कम ही है, 2 से कम सारी वैल्यूज, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक वैल्यू होगी, और दोनों पे क्या होगा, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का मतलब मैंने बताया था आपको कि अगर a और b ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है तो ना तो a लेंगे ना तो b लेंगे, लेकिन हाँ a और b के सारी वैल्यूज लेंगे। तो अगर इसको आप ओपन इंटरवल्स में लिखोगे तो द सॉल्यूशन विल बी सॉल्यूशन ऑफ x विल बी इन ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, और दोनों पे ओपन इंटरवल ही रहेगा, ठीक है। ये ओपन इंटरवल ये शो करता है कि ना तो हमको माइनस इनफाइनाइट लेना है, क्योंकि इनफाइनाइट हम कभी लेते नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगा जरूर ये, माइनस इनफाइनाइट तक जरूर जाएगा ये, लेकिन लेते नहीं है। तो इनफाइनाइट पे चाहे प्लस इनफाइनाइट हो चाहे माइनस इनफाइनाइट हो, वहां पे तो हमेशा ओपन इंटरवल ही होगा। 2 पे क्या रहेगा, तो 2 पे हमको ये देख के पता चलेगा कि ओपन होगा कि क्लोज। अगर ये इक्वल टू भी 2 होता तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल बन जाता, लेकिन x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो दैट्स व्हाई आई हैव पुट ओपन इंटरवल इन बोथ साइड। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी माइनस इनफाइनाइट टू 2। और इसी को आपको अगर सेट के टर्म्स में लिखना हो तो वी कैन राइट x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। साथ साथ मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही बता दिया। कभी आपको ग्राफिकल वे में बताना हो, देखो मैंने यहाँ लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आप नंबर लाइन का यूज करके बता सकते हो, वही उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। वन मोर क्वेश्चन आई विल टेल यू स्टूडेंट सो दैट योर डाउट विल बी क्लियर। तो फर्स्ट नोट डाउन इट, ओके। Now student, one more example for you, that is we have to solve 5 minus 2x by 3 less than or equal to, okay. This is also a sign of inequality. This is known as slack inequalities, okay. So 5 minus 2x upon 3 less than or equal to x by 6 minus 5. So we have to solve for x, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले लेफ्ट और राइट में जो बचा हुआ है उसको साथ साथ सॉल्व कर लो पहले अलग अलग। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 5 माइनस 2x बाई 3, क्योंकि इसमें सॉल्व करने लायक कुछ है नहीं। हाँ, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ एलसीएम लेके, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना एलसीएम लेके। तो एक काम करते हैं, एलसीएम लोगे जब आप तो क्या आएगा 6 एंड दिस विल बी x माइनस 30, ठीक है, दिस विल बी x माइनस 30, ठीक है। अब देखो जो भी दोनों के डिनोमिनेटर में है, जो नंबर भी दोनों साइड के डिनोमिनेटर में है,
इधर 3 है, इधर 6 है, इसका आप एलसीएम ले लो, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आता है तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो एलसीएम होगा इसका 6। द एलसीएम ऑफ 3 and 6 is 6। द एलसीएम ऑफ, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए काम कर रहे हैं। सो एलसीएम ऑफ 3 and 6 विल बी 6, ठीक है। तो देखो 6 है ना, तो आप क्या करो, जो भी एलसीएम आया है उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम है 6 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 6 से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड आएगा 6 into 5 minus 2x/3 लेस देन और इक्वल टू x minus 30/6 into 6। जो भी एलसीएम पहले अलग अलग सॉल्व कर लिया, फिर देखा कि डिनोमिनेटर में क्या है, उसके हिसाब से एलसीएम लिया और वही एलसीएम को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम वाज अ पॉजिटिव नंबर, दैट्स व्हाई साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। अगर नेगेटिव से करते तो हो जाता। तो अब देखो दिस 6 विल बी कैंसिल्ड टू दिस 6 एंड दिस 6 विल बी कैंसिल्ड टू 3, दैट विल बी 2 बचेगा। तो इधर बच गया 2 इन ब्रैकेट 5 minus 2x, इधर बच गया x minus 30, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई इट, सो इट विल बी 10 minus 4x is less than or equal to x minus 30, ठीक है। अब देखो फिर से वही चीज, हमको दोनों साइड x, हमको किसी एक साइड हमें वेरिएबल रखना होता है और किसी एक साइड नंबर रखना होता है। जैसे आप इक्वेशन में करते थे सेम सब कुछ वैसे ही करना है। तो मैं चाहता हूं केवल लेफ्ट हैंड साइड, आप भी यही करना, आप बस बना देना कि मुझे बस लेफ्ट हैंड साइड ही वेरिएबल चाहिए, राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, ठीक है। तो इधर 4x है और इधर x है, तो मैं चाह रहा हूं केवल इस साइड x रहे, इधर x ना रहे। तो अगर मैं दोनों साइड -x कर दूं स्टूडेंट, -x, ओके, इफ आई विल डू इट -x in both sides, so what I will get 10 minus 4x minus x this side, and this side will be x minus 30 minus x। क्यों किया, क्योंकि इनइक्वालिटी में दोनों साइड हम कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे -x सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 10 minus 5x is less than or equal to -30, ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा पर्पस वही है कि हमारा लेफ्ट साइड केवल वेरिएबल रहना चाहिए, केवल वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। लेकिन लेफ्ट साइड 10 भी आया है, मुझे इस 10 को हटाना है। अगर मुझे इस 10 को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 minus 10x minus 10 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा -30 minus 10, ठीक है। तो ये 10 कैंसिल, so in the left side -5x will be left and the right side -40 will come, ठीक है। I think it is clear to you student, please note down it fast। Now see, again हमें बस x चाहिए, हमें 5x नहीं चाहिए, तो मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे अगर, तो इधर हो जाएगा -5x/5 एंड इधर हो जाएगा -40/5। तो ये कट गया, तो ये हो गया -x और ये हो गया -8, which means that -x is less than or equal to -8। सब कुछ सॉल्व करने पर इतना आया हमारे पास, ठीक है। अब देखो -x is less than -8, ठीक है, -x is less than -8, बट मुझे x चाहिए, तो मुझे इस माइनस साइन को रिमूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बस x चाहिए। तो अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा क्या, देखो कभी ऐसा मत करना, आप इक्वेशन में क्या करते थे आप कि अगर -x = -4 होता था तो आप डायरेक्टली कट कर देते थे, x = 4 आ जाता था। इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। अगर माइनस आ रहा है तो उस माइनस को हटाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई करके, और जब मल्टीप्लाई करके हटाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो हेयर विल बिकम x और हेयर विल बिकम 8 ओनली, ठीक है। जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां लिख लेना बाय मल्टीप्लाइंग -1, सो हेयर विल बी x एंड हेयर विल बी 8। और जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया, दिस इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। इनइक्वालिटी साइन ऐसे था तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसे हो गया, ठीक है, जस्ट अपोजिट। अगर लेस देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा।
तो जैसे -1 से मल्टीप्लाई किया, दिस साइन बिकम्स लाइक दिस. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन स्टेटमेंट, दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8. x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8. यहाँ पे आप माइनस माइनस कैंसिल मत कर देना स्टूडेंट. यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि माइनस इधर भी आया, माइनस इधर भी आया, तो आप कैंसिल कर दिए. वो तब करते थे जब इक्वेशन होता था. इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इक्वेशन में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता है. तो फर्क पड़ता है, तो जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, और ये साइन दैट इज लेस देन और इक्वल टू साइन चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, मतलब कि x की वैल्यू 8 भी है और 8 से ज्यादा भी है. ठीक है, तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका पहले आपको बताते हैं. x जो वो 8 के बराबर हो या 8 से बड़ा हो, तो बड़ा तो इनफाइनाइट तक हो सकता है, बड़ा तो आप इनफाइनाइट तक हो सकता है. अगर जब बड़ा ही लेना है तो हम क्यों कम ले, हम ज्यादा लेंगे. तो मिनिमम वैल्यू इसकी 8 है और मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी. तो यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट, वो निकलेगी x बिलोंग्स टू 8 इनफाइनाइट. अब कौन सा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे कि ओपन लगाएंगे. ध्यान दो, x की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि 8 होनी चाहिए. 8 भी हो सकती है और 8 से ज्यादा भी हो सकती है. तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है ना, ग्रेटर देन का भी साइन लगा और इक्वल टू का भी साइन लेना है. मतलब कि हमको जो 8 है वो लेना है, 8 लेना है मिनिमम, और 8 से ज्यादा कुछ भी. तो 8 पे यहाँ पे क्लोज होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, और इनफाइनाइट पे ओपन होगा. तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इन a टू इनफाइनाइट. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग. अब इसी को मैं अगर ग्राफिकल समझाऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा. कैसे, देखो, अगर मैं इसको ग्राफिकल बता रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे कहीं 0 होगा, इधर कहीं नेगेटिव नंबर होगा और इधर कहीं पॉजिटिव नंबर होगा. ठीक है, और यहाँ पे कहीं 8 होगा और इधर प्लस इनफाइनाइट होगा. ठीक है, और इधर माइनस इनफाइनाइट होगा. तो इसी स्टेटमेंट को मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो x की वैल्यू, x के बारे में कुछ दिया नहीं था, मतलब कि हम रियल नंबर मानेंगे इसको. जब कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो रियल मानते हैं. x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8. इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू या तो 8 हो या 8 से बड़ी हो. तो 8 हो ना, 8 को हमको लेना है. वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ 8. तो 8 पर आप डार्क सर्कल बनाओगे, डार्क, ओपन नहीं, डार्क सर्कल. ठीक है, और ये सारी वैल्यूज जो 8 या 8 से बड़ी हैं, वो सारी वैल्यूज इसका सोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, ये सारी वैल्यूज सब कुछ, तो उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, डार्क लाइन से. ठीक है, लाइक दिस. ये डार्क है. ठीक है, डार्क है, मतलब कि 8 और 8 से बड़ा सारा. तो इसी चीज को अगर आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो 8 पे क्लोज सर्कल है. तो क्लोज सर्कल जहां भी होता है स्टूडेंट, क्लोज सर्कल जहां भी होता है, जहां पर भी क्लोज सर्कल होता है, मतलब कि वो वैल्यू हमको लेनी होती है, मतलब कि दैट वैल्यू इज इंक्लूडेड. और अगर दैट वैल्यू इज इंक्लूडेड तो 8 के साइड में क्लोज इंटरवल होगा. और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक. तो इनफाइनाइट तक जाएगा और इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल होगा. ठीक है, यहां पर क्लोज और यहां पे ओपन. इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 8 हो सकती है, मिनिमम 8 होगी, और 8 से ज्यादा कुछ भी होगी अप टू इनफाइनाइट. इसका मतलब यही होता है कि 8 होगी और 8 से बड़ी कुछ भी होगी. 8 से बड़ी कोई भी बड़ा रियल नंबर होगा, वो सारी वैल्यूज x की होगी. समझ में आया. अगर ऐसे लिखता है ना, x इज ग्रेटर देन 8, इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 8 से बड़ी कोई भी रियल नंबर होगी. तो रियल नंबर डेसिमल भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं, कुछ भी होते हैं. तो 8 से बड़ी कुछ भी होती है. अगर इसको रिप्रेजेंट करना होता तो अब 8 से बड़ी है ना, और 8 पे ग्रेटर देन का साइन है, मतलब कि हमको 8 लेना नहीं है. तो 8 से बड़ी तो इनफाइनाइट भी हो सकती है. तो 8 इनफाइनाइट, और दोनों पे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 के पास 8 से बड़ी है, 8 को लेना नहीं है. यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन था और यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन है. तो ग्रेटर देन का साइन है तो मतलब कि 8 को भी लेना नहीं है. 8 से बड़ी कोई भी वैल्यू, तो 8 से बड़ी कोई भी वैल्यू विल बी लाई बिटवीन 8 टू इनफाइनाइट, दैट बोथ विल बी इन ओपन इंटरवल. तो सेम कॉन्सेप्ट को इसमें लगाया गया है. तो इसका जो सोल्यूशन हो गया दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8. इसका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी x बिलोंग्स टू
या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो, द सोल्यूशन ऑफ x इज लाइक दिस 8, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप इस तरह लिखो x बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि आपने सेट पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू, तो इसका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी 8 टू इनफाइनाइट, 8 पे क्लोज्ड और इनफाइनाइट पे ओपन। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ और ये इसका अलजेब्रिक सोल्यूशन हुआ। जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो वो अलजेब्रिक होता है, और जब हम लोग नंबर लाइन का यूज करते हैं तो वो ग्राफिकल होता है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट इट इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल discuss the exercise 6.1 from your NCERT book. So I think it is clear to you. Whatever things are left, that thing we will discuss in the next part of video. Means in the next part we will solve exercise 6.1. Okay. So till then students, have a nice day. Take care. Thank you.